हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्ले थेरेपी के बारे में बताऊंगी कि काउंसलिंग करते समय कभी कभी किन टेक्निक्स के जरिए हमें अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग या उनकी हेल्प करनी पड़ती है। और ये जो प्ले थेरेपी है दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद चिल्ड्रन, क्योंकि ये चिल्ड्रन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि वो खेल खेल में अच्छी चीजें सीख लेते हैं और जो चीजें हम उन्हें वर्बली बता के इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं वो प्ले थेरेपी के थ्रू खेल खेल में सीख जाते हैं। So play therapy is a form of therapy used primarily for children. That is because children may not be able to process their own emotions or articulate problems to parents or other adults. A trained therapist can use playtime to observe and gain insight into a child's problem. The therapist can then help the child explore emotions and deal with unresolved trauma. Through play, children can learn new coping mechanisms and how to redirect inappropriate behaviors. Although everyone benefits, play therapy is especially appropriate for children ages 3 through 12 months. So that is the main point of play therapy कि play therapy के through जैसे अडल्ट है वो अपनी प्रॉब्लम के लिए फोकस्ड होता है और वो अपनी प्रॉब्लम बता पाता है, लेकिन जहां तक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम ही नहीं पता होती कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कहाँ तकलीफ है। बस उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है या वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है, बट दे आर नॉट एबल टू टेल एनीबॉडी अबाउट देयर प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो बच्चों की जो प्ले थेरेपी होती है इसमें से थेरेपिस्ट जो है, जो काउंसलर है, वो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि गेम्स के थ्रू जो अच्छा काउंसलर है, जो अच्छा थेरेपिस्ट है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर चिल्ड्रन हु इज इन्वॉल्व इन दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो बाय डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्ले थेरेपी and then the follow-up and the treatment of the children also by play therapy is very beneficial for the children. What kind of problem is play therapy effective for? This is very important question, क्योंकि अगर हम किसी थेरेपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कि क्या प्रॉब्लम है जिनके लिए हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन who have experienced physical or emotional trauma, experienced physical, emotional, or sexual abuse, witnessed conflict or have been bullied, been severely punished by teachers or authority figure, experienced significant life changes such as loss of parents, parents divorce, and so on, issues with anxiety or sadness, trouble coping with their immediate environment. तो अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्ले थेरेपी कैन बी इफेक्टिव टू हेल्प द चिल्ड्रन टू ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So children learn to understand the world and their place in it through play. It is where they are free to act out their inner feelings and deepest emotions. Toys can act as symbols and take on greater meaning. So if you know what to look for, much can be revealed in how a child interacts with different type of toys and how their behavior changes from session to session. Play therapists use these observations as a guide to the next step. Each child is different, so therapy will be tailored to their individual needs. So this is very important. हमारे when we are dealing with some individuals, so we cannot generalize any one thing that this particular thing will be effective for treating this particular type of problem, because when we are dealing with individuals, when we are dealing with a human problem, it is always very subjective. तो प्ले थेरेपी क्या होगी, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उसे कितने सेशंस लगेंगे ये भी इंडिविजुअल के, ये भी बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसमें रेजिस्टेंस कितना है, वो रिएक्ट कितना कर रहा है. तो प्ले थेरेपी के इनिशियल सेशंस के बेसिस पर ही जो प्ले थेरेपिस्ट होता है वो अपने आगे के सेशंस को प्लान करता है, और वो किन टॉयज से खेल रहा है, उनको कैसे अरेंज कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स डू matter in the treatment and diagnosing the problem of the child.
Tracking behavior is the most basic of play therapist responses. The therapist tracks behavior when he or she verbally responds to the behavior of the child simply by stating what is seen or observed. Tracking behavior allows the child to know that the therapist is interested and accepting. जब आप बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, and the child is well aware that his behavior is being observed, so he is more likely to cooperate with the therapist. So this was a short introduction about play therapy. कि play therapy क्या होती है, कैसे प्ले थेरेपी से हम डायग्नोज के साथ साथ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस ऑफ प्ले थेरेपी जिन्हें हम प्ले थेरेपी की टेक्निक्स कहते हैं. कुछ हैं इसमें. पहला है आपका मेटाफर्स एंड स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी, रोल प्ले थेरेपी, टॉय एंड ऑब्जेक्ट प्ले थेरेपी, जीनोग्राम्स, इमेजरी एंड फैंटेसी प्ले थेरेपी एंड सम अदर प्ले थेरेपीज. तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. First of all, we come to metaphors and storytelling. इनके भी अपने segregations हैं. Metaphor and storytelling के 4 parts हैं. Bibliotherapy, turtle therapy, emotion thermometer and mutual storytelling. इनके बारे में एक एक करके आपको explain करती हूँ. First जो metaphor and storytelling का है, that is emotional thermometer या emotion thermometer. This is very interesting. The children are given a makeshift emotion thermometer with a range of emotions from 0 to 10. अब 0 to 10 में हम स्माइलीज को प्लान करते हैं. 0 स्माइली फेस हो सकता है और 10 जो है सबसे गुस्से वाला फेस हो सकता है. The play therapist instructs the children to list events and how they feel about it, then indicate point on the thermometer. Therapist बच्चे को बोलता है कि आप कोई इंसिडेंस बताओ जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम वाला इंसिडेंस हो. सपोजिंग बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मेरा जो फ्रेंड है मुझे बहुत मारता है, तो उसके इस इंसिडेंस को हम बच्चे से पूछते हैं कि आप 1 से 10 तक के थर्मामीटर में कहाँ पे प्लान करते हैं. अगर आप उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं तो आपको 10 पे करना है. अगर आपके लिए ठीक ठाक है तो आप 1 पे कर सकते हो. तो ये इस टाइप से फीलिंग थर्मोमीटर या इमोशन थर्मामीटर पे हम उसकी किसी प्रॉब्लम को प्लान करने के लिए कहते हैं. So some questions to ask may be, what make you feel like a smiling face, what make you sad or frowny, and what makes you relax and enjoy it. इनको हमें 10 point rating scale पे, which is known as the feelings thermometer या emotion thermometer, the child is supposed to rate his or her feeling on this feeling thermometer. Second is mutual storytelling. The first step in the mutual storytelling technique is to elicit a fictional self-created story from the client. The story needed to be from their own imagination, and it was against the rules to tell a story about anything that really happened, anything they read or heard about, or anything they saw on television or in a movie. मतलब इसमें बच्चे को ये कहा जाता है कि आपको एक अपनी क्रिएटेड स्टोरी बतानी है और ये कहीं टीवी में देखी नहीं होनी चाहिए, आपने इसके बारे में सुना नहीं है या कहीं पढ़ा नहीं है. ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है इस स्टोरी. So the story must also include a moral or lesson. When the client has finished telling a story, it is important for the counselor to ask about the moral or lesson of the story. The counselor may also ask for a title of the story or which character the client relates to, even who the client would or would not like to. तो first of all, बच्चे से बोला जाता कि आपको एक स्टोरी ऐसी बनानी है जो आपकी ओरिजिनल स्टोरी है. उसके बाद इस स्टोरी का एक मॉरल होना चाहिए. जब वो स्टोरी लिख के दे देता है तो जो काउंसलर है उससे उस थेरेपी स्टोरी का मॉरल पूछता है और वो 2 कैरेक्टर्स पूछ सकता है जो उसे सबसे डिसलाइक है या जिसको वो सबसे ज्यादा लाइक करता है. थर्ड टेक्निक है टर्टल टेक्निक. अ थेरेपिस्ट माइट गिव अ क्लाइंट अ टर्टल पपेट and explain that when the turtle is upset about something, it stops, goes into its shell, closes its eye, and take 3 deep breaths. The client can then play out this process with the turtle puppet, and this can help the client learn
एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स। जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, जैसे जो एज ए काउंसलर जब पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों की एक कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये स्पेसिफिक टेक्निक है, टर्टल टेक्निक। ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप उस सिचुएशन से थोड़े टाइम के लिए अपने आप को विड्रॉ करो, टेक अ डीप ब्रेथ, उससे आपको अच्छा फील होगा एंड देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर एंगर। Fifth is bibliotherapy. The therapist might find a story or book that involves a problem similar to the client's problem, and that provides a solution to this problem. While reading this story with the client, the therapist might ask questions relating the story to the client's life, such as, have you ever felt this way? तो बिब्लियोथेरेपी में जो क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से मिलती जुलती स्टोरी काउंसलर उसे पढ़ के सुनाता है, जिससे कि और जिस स्टोरी में उसका सॉल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ वो बीच बीच में पूछता है कि क्या कभी आपने ऐसा फील किया। तो बच्चा उस कहानी के कैरेक्टर से रिलेट करके और ओपन होता है। एंड वंस द चाइल्ड opens himself in front of the counselor, the counseling process becomes easier. Second है आपकी क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी। क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी 3 टाइप की होती है, कलर योर लाइफ प्ले थेरेपी, क्ले प्ले थेरेपी एंड ड्रॉ फैमिली प्ले थेरेपी। इसको क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी क्यों बोलते हैं? इसमें बच्चे को कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट या कुछ ना कुछ बना के दिखाना होता है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी। क्रिएटिव आर्ट प्ले थेरेपी की फर्स्ट टेक्निक है कलर योर लाइफ प्ले थेरेपी। The color your life technique, a form of play therapy, is designed to help children become aware of the range of feelings possible, to talk about their own feelings, and to move from action to verbal form of expression. अब इसमें क्या है कि बच्चे को अवेयर कराना होता है कि उसके गुस्से की क्या रेंज हो सकती है, और उस गुस्से के मैग्नीट्यूड को कम करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी की काउंसलिंग करा रहे हैं सपोजिंग एंगर मैनेजमेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3-4 सेशन में बच्चे का गुस्सा बिल्कुल एकदम छूमंतर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग में उसके मैग्नीट्यूड में अंतर लाना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड में अंतर कैसे आएगा कि उसके वर्बल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से वो मतलब एक्शन से वर्बल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पे आ जाता है। मतलब पहले जिस प्रॉब्लम के लिए वो अपने भाई बहन के साथ मारपीट करने लगता था, अब उसी बिहेवियर के लिए अब वो सिर्फ उन्हें कुछ बातें सुनाता है। तो दिस इज अ बिग चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है, टू मूव फ्रॉम एक्शन टू वर्बल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। So give the child and their family enough pieces, the candy, and let them sort them out by color. Instruct them depending on the number of colors to respond to the following prompts. उनको बहुत सारे कलर्स की कैंडी दी जाती हैं, और उन कैंडी के कलर्स के हिसाब से उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि चूज ग्रीन, यूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फैमिली। अगर ग्रीन चूज किया है तो आप उन वर्ड्स को बताइए जिनसे आप अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करिए। ऑरेंज, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन द फैमिली सेटअप। रेड, रिप्रेजेंटिंग व्हाट वरीज देम। येलो, डिस्क्राइब देयर फेवरेट मेमोरीज। पर्पल, टू डिस्क्राइब फन एक्टिविटीज द फैमिली डज। तो इस टाइप से जिस कलर की कैंडी वो उठाता है, उस कैंडी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन नेचर ऑफ क्वेश्चन से इतना तो क्लियर होगा ही कि ये क्यों कराई जा रही है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी इसलिए कराई जा रही है कि जिससे उनकी फीलिंग्स की कैथारसिस हो सके कि वो फैमिली में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नीडेड फॉर अ हेल्दी लाइफ। हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? जब हमें पता नहीं होता है हमसे क्या एक्सपेक्टेड है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीजों का एक्सप्रेशन हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो कलर योर लाइफ प्ले थेरेपी फोकसेस ऑन कैथारसिस, on the catharsis process of the child as what he wants from his family and what he perceives his family as.
Second is clay play therapy. Clay play therapy allows the child to show their creativity while expressing what they feel inside. When sculpting, the technique helps children relieve stress. They use art skill to sculpt characters who maybe contribute to their mental health disorder. Therapists gather information from the interaction and use it to offer solution. क्ले प्ले थेरेपी में क्या होता है, मिट्टी दे दी जाती है, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी क्ले आने लगी है और उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। अब बच्चा उस क्ले को इस्तेमाल करके क्या चीजें बनाता है, किन ऑब्जेक्ट्स को बनाता है और कैसे अपना एक्सप्रेशन करता है, तो ये भी एक टाइप की क्रिएटिविटी, और वो जो चीजें बनाता है उससे भी उसकी प्रॉब्लम की डायग्नोसिस हो सकती है। प्लस जो चिल्ड्रन बना रहा है उसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को जब बाहर निकालता है ना, तो ही फील्स अ मोर रिलीव्ड इन हिज लाइफ। थर्ड थेरेपी इज ड्रॉ फैमिली प्ले थेरेपी. In the draw family therapy session, the client is asked to draw a picture of their family. The psychiatrist asks questions based on the drawing to understand what every family member represents to the child, how they affect them and make them feel. The way they draw each family member reveals how they affect them, and this play therapy helps children speak out hidden emotions. अगर आप किसी से उसके मम्मी पापा या भाई बहन के बारे में डायरेक्ट पूछोगे ना, तो वो शायद आपको कभी नहीं बता पाएगा कि मेरी मम्मी अच्छी है, पापा अच्छे हैं या कौन अच्छा है। लेकिन जब हम उनसे बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को ड्रॉ करो, तो वो अपनी मदर को किस वे में ड्रॉ कर रहा है, फादर को किस वे में ड्रॉ कर रहा है, प्लस उसमें उसने अपनी क्या पोजीशन रखी है, वो अपने आप को फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में परसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ काउंसलर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, and if the counselor is able to understand the basic focus of the problem of the child's recovery becomes faster. Third technique है रोल प्ले थेरेपी. ये 5 टाइप की है. पहली है आपकी कॉस्ट्यूम प्ले थेरेपी, दूसरी है सुपर हीरो प्ले थेरेपी, तीसरी है रोल प्ले, चौथी पपेट प्ले, एंड द लास्ट वन इज मास्क प्ले. And I will explain them one by one. First is superhero play. The therapist might ask the client to draw a superhero with superpowers that the client would like to have. The therapist can then help the client figure out how their personal strength can be as useful as these superpowers. तो बच्चे से पूछा जाता है कि किस सुपर पावर से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसकी किन पावर्स को वो अपने में देखना चाह रहा है और उन पावर से वो क्या करेगा। तो इस टाइप से जब वो किसी सुपर हीरो से आइडेंटिफाई करता है, तो काउंसलर उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ को यूज करता है उस सुपर पावर के रूप में जिसके साथ वो बच्चा आइडेंटिफाई करता है। तो इससे बच्चे की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसके कैरेक्टर के पॉजिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हें हाईलाइट करना। मतलब हर इंडिविजुअल के अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है, तो हमारे अंदर जितनी पॉजिटिविटी है उनको इनहैंस करके उनकी और लाइफ को मोड़ना, यही एक काउंसलर का काम होता है। तो इसके थ्रू हम किसी बच्चे की पॉजिटिव जो पर्सनल स्ट्रेंथ है उनको बूस्ट अप करते हैं। सेकेंड इज पपेट प्ले. Puppets are excellent tools for play therapy. A unique technique is the family puppet interview. The therapist presents the children and their families with puppet, then ask them to choose a puppet representing each member. उसके सामने पपेट रख दी जाती है और उससे ये बोला जाता है इनमें से जो पपेट तुम्हारे जिस फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही है उसको आप चूज कर लो. The child and their family narrate a story using the puppet. While at it, the counselor interviews individual family members about the story and then open up the discussion to the whole group. This helps reveal family dynamics the child might be unwilling to talk about freely. Communication using puppet has helped clients struggling with selective mutism. अब हर बच्चे की फैमिली का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है. कुछ पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, या मान लीजिए पेरेंट्स डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, बच्चा बहुत सबमिसिव है. तो किसी भी कारण से द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर. सो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक for the child to reveal his personality in front of his family members. So जो इसमें selective mutism है, ये
दूर करने में इस थेरेपी से बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है रोल प्ले। फॉर एग्जाम्पल, द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट might role play a situation the client is anxious about, such as the first day of school, so that the child can work out what they feel anxious about and possibly realize they do not need to be anxious at all. तो रोल प्ले में जैसे कोई भी सिचुएशन ले ली जाती, मान लो एक बच्चे की ये प्रॉब्लम है कि वो जब स्कूल जाता है ना तो बहुत रोता है, तो रोल प्ले में क्या कराते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनके लिए बच्चा एंग्शियस फील कर रहा है, और उसके एंजाइटी के जो जो सोर्सेज होते हैं कि मतलब बच्चा बहुत से फैक्टर बता सकता है, स्कूल में मम्मी नहीं मिलेंगी, स्कूल में अच्छा खाना नहीं मिलेगा, स्कूल में बच्चे मारेंगे, तो जो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होने के लेवल तक होंगी, जैसे अगर स्कूल में मम्मी नहीं मिलेंगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, लेकिन और उसकी एंजाइटी के क्या कारण है, स्कूल में कोई बच्चा उसे मारता है, या स्कूल में उसे फ्रीडम नहीं मिलती, या स्कूल में टीचर परेशान करती है, या स्कूल में वो बहुत लोनली फील करता है, तो वो अपनी एंजाइटी का क्या कारण बताता है। तो वंस हिज एंजाइटी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द काउंसलर, तो उसकी जो ये प्रॉब्लम होगी ना कि बच्चा स्कूल जाने के टाइम बहुत रोता है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पे हम प्ले थेरेपी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर फोकसिंग अपॉन चिल्ड्रन, तो बच्चे ऐसे भी पूरी बात नहीं बता पाते, उनसे खेल के थ्रू या रोल प्ले करके थ्रू, क्योंकि जब तक बात उनके ऊपर होती है ना कि तुम ये कर रहे हो, तब तक वो शायद अपने इमोशंस को छुपाते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि सपोजिंग ऐसी सिचुएशन है तो कोई बच्चा इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो बच्चा उतना मतलब ये नहीं समझ पाता कि उससे ऐसा क्यों कराया जा रहा है, और वो अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुली एट स्कूल माइट instill fear, but role playing makes the child understand the bullying has nothing to do with them. So whatever the problem of the anxiety of the child exposes them through role play, and once a counselor is able to know the root cause of the problem of the client, he is able to resolve them. Fourth is costume play. For example, the therapist and client might pretend that the client is being crowned the new king or queen of a land, and the therapist can then ask what the new king or queen wants to do with their power to figure out what the client likes and dislikes. This is very interesting. इसमें सपोजिंग किंग या क्वीन का कॉस्ट्यूम उसे पहना के ये बोला जाता है, सपोजिंग तुम किसी कंट्री के या किसी मोहल्ले के राजा होगे, और बताओ तुम इसमें क्या क्या चेंज कराना चाहोगे, क्या अच्छी चीजें हैं जिन्हें तुम इंक्लूड करना चाहोगे, और कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें तुम निकाल के फेंकना चाहोगे। तो इससे उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके बेसिक जो इसका स्कीमा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Next is mask play. For example, the therapist might ask the client to make two collages out of magics. One mask, the outside mask, is how they think the world sees them. And one mask, the inside mask, is how they see themselves. This can reveal a lot about how the client thinks of themselves and the world. तो इसमें दो टाइप के मास्क उससे पहनने को कहा जाता है। एक मास्क के लिए कहा जाता है कि ये आउटसाइड मास्क है, इसमें तुम्हें ये बताना है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, और दूसरा जो मास्क है वो इनसाइड मास्क है, इसमें तुम्हें ये बताना है कि तुम दुनिया को कैसे परसीव कर सकते हो। इसमें जो एक्चुअल और रियल परसेप्शन होता है उनके बीच का भी जो डिस्क्रिपेंसी होती है उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये एक्चुअल और रियल परसेप्शन के बीच की डिस्क्रिपेंसी दूर हो जाए तभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है टॉय एंड ऑब्जेक्ट प्ले थेरेपी। इसके भी 4 सब सेक्शंस हैं। मैजिक वैन प्ले, इमोशन बॉल प्ले, फीलिंग कैरट प्ले एंड टीयरिंग प्लेज। फर्स्ट इज द मैजिक वैन प्ले थेरेपी. The therapist might give a client a magic band and tell them they can make 3 wishes. At least one of the wishes is likely to relate to a real life problem the client has.
This play technique is effective for helping clients to safely verbalize their wishes or goals, as well as aspects of their environment, for example, at school or in their home, that may be troubling them. इसमें एक मैजिक बैंड दे दिया जाता है और बच्चे से ये बोला जाता है कि इससे तुम अपनी 3 विशेष पूरी करना चाहते हो, लेकिन एक विश तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए है। और जब एक बार अच्छे से डायग्नोज हो जाएगी ना, तो उसकी फिर सोल्यूशन में टाइम नहीं लगता। जैसे अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, तो अगर एक बार डायग्नोसिस अच्छी होती है तो दवाइयों का असर तुरंत होता है। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, अगर उसके डायग्नोज सही हो जाए कि व्हाट इज द रूट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो फिर उसके सोल्यूशन में टाइम नहीं लगता। तो इस मैजिक बैंड प्ले थेरेपी से भी यही रिवील होता है कि बच्चा रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम देख रहा है और वो उन्हें वर्बलाइज कैसे कर रहा है और क्या चीजें चाहता है, व्हाट चेंजेस द चाइल्ड नीड्स इन हिज सराउंडिंग। So this is also one of very effective technique of toy and object play therapy. Second is emotional ball play therapy. This one works well to express emotions, especially in children who might be uncomfortable describing their feelings. Using a ball, write the feeling on each side, then have the family toss the ball back and forth. You might have emotions like joy, happiness, sadness written on the ball. Whoever catches the ball describes a time when they had that particular feeling. This is a group therapy activity to help families discuss their emotions while the rest listen with no judgment. ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें एक बॉल में सारी साइड्स में कुछ ना कुछ इमोशन सारे लिख दिए जाते हैं और फिर उस बॉल को रोल किया जाता है। जो भी फैमिली मेंबर या जो भी ग्रुप का मेंबर उस बॉल को कैच करता है और जिस साइड को उठाता है, उस साइड का जो इमोशन होता है उसे इनैक्ट करना पड़ता है कि उसकी लाइफ में इस इमोशन का एपिसोड कब और कहाँ हुआ। तो ये एक तरीके की ग्रुप थेरेपी है और इसके जरिए जो लोग होते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, एपिसोड्स को बिना डरे हुए बताते हैं और बिना किसी इंटरप्शन के बताते हैं, क्योंकि इस समय जो लोग सुन रहे होते हैं ना, बिना जजमेंटल हुए सुन रहे होते हैं। ऐसे बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है, 10 लोग 10 टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल बॉल प्ले थेरेपी है, इसमें जब बच्चा प्ले करता है तो नोबडी लिसन्स विद अ जजमेंटल टेंडेंसी, सो इट वर्क्स वेरी पॉजिटिवली। Third is feelings carrot play therapy. This play uses feelings on written carrot cards. You could call it a card game. The children pick cards and act out the emotion written on them during the therapy session. The aim is to allow the therapist to analyze how client expresses their feelings in a family setup. Best for teens and very therapeutic. इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के कार्ड्स में कुछ सिचुएशंस दी होती हैं और बच्चा जो भी कार्ड पिक करता है उसको उसे इनैक्ट करके दिखाना पड़ता है। अब इसमें इसका ये इंटेंशन है कि बच्चा अपने इमोशंस को अपने फैमिली मेंबर के आगे कैसे एक्सप्रेस करता है, क्योंकि बहुत बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने पेरेंट्स तक को अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो खेल खेल में वो कैसे अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं कि मान लो अगर वो टायर्ड है तो टायर्ड का क्या इमोशन वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, सरप्राइज्ड कैसे करेगा, क्या इंसिडेंट्स बताता है। तो जो भी कार्ड में लिखा होता है वो उसे करके बताना पड़ता है उस फीलिंग को। उसके बाद इसकी लास्ट टेक्निक है टीयरिंग पेजेस। This play therapy technique uses an old book. The children tear pages out of the book, crumple and toss them into a paper bag. This play therapy idea helps the children understand how to throw away angry feelings and not hold on to them. इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे एक पुरानी जो यूजलेस, मान लीजिए कोई ओल्ड बुक है जो किसी के काम की नहीं है, उसको अलाउ किया जाता है बच्चे को कि वो फाड़ के उनको डस्टबिन में फेंक दे। तो जब so the moral behind this activity is to treat the same behavior with your negative emotions, with your anger, with your stress, with your problems. अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सहेज के मत रखो, उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो एंड जस्ट मूव ऑन। अगर किसी से आप
गुस्सा हो तो ये जो थ्रो अवे वाली फीलिंग है ना, थ्रो अवे जब तक नहीं करोगे ना तब तक आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे. तो इफ यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ यू हैव टू लर्न दिस स्किल ऑफ थ्रोइंग अवे. तो इस टेक्निक से थ्रो अवे करके उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टीयरिंग पेजेस प्ले. कि आप जैसे इस किताब के पन्नों को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, इन द सेम वे यू हैव टू tear your anger and throw it in the dustbin and just move on. नेक्स्ट है जीनो कैप्स. इसके भी अलग अलग हैं टेक्निक्स, कम्युनिकेशन गेम एंड सेल्फ कंट्रोल प्ले थेरेपी. First is communication games. The therapist and client might play the talking, feeling, and doing game. A turn of the game might look like this. The client draws a card that says, make believe that something is happening that is scary. What is happening? And if the client does what the card says, they get a chip. मतलब इसमें क्लाइंट को एक कार्ड ड्रॉ करना है जिसमें ये बिलीव करना है कि कुछ स्केरी होने वाला है. क्या होने वाला है ये उसे लिखना है, और अगर क्लाइंट लिख देता है तो उसे एक चिप मिलती है. So during the game, the therapist can see how the client reacts in certain situation and advise them to how to react in this situation. अब इसमें काउंसलर को क्लाइंट के रिएक्शंस पता चल गए ना कि स्केरी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा और किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा, तो उसको रिएक्शन पता चल गया. अब अगर वो reactions are not healthy for his mental and psychophysical health, the counselor can direct him to do the more healthy, healthier behavior for that particular situation. So the response of the child during play therapy in this game reveal their inner feelings and psychological issues. Second is self-control games. The therapist and the client might play Simon Says, where the client has to do what the therapist says, such as jumping on one foot, but only if the therapist started their sentence with Simon Says. This can promote paying attention and self-control. मतलब थेरेपिस्ट कुछ भी कहे तब उसको नहीं करना है. थेरेपिस्ट जब ये कहता है कि साइमन सेज दैट यू शुड जंप ऑन वन फुट, तभी आपको एक पैर पे कूदना है. तो प्रॉम्प्टिंग वर्ड्स या कीवर्ड्स क्या है? साइमन सेज. ठीक है ना. तो ये जो साइमन सेज है इसमें बच्चा अटेंशन पे करता है एंड सेल्फ कंट्रोल इनहेंसमेंट के लिए, क्योंकि सब चीजों पे उसको वो इनैक्ट नहीं करना है. जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ आई एम सेइंग जस्ट जंप ऑन वन फुट, तो वो मुझे नहीं करना है. अगर वो करना है तो वो फॉल्स अलार्म हो जाए. मुझे तभी करना है जब थेरेपिस्ट बोलेगा कि साइमन सेज जंप ऑन वन फुट, और अगर हम तब वन फुट पे जंप करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट होगा. So this technique can promote paying attention and self-control, as the client has to pay attention to what the therapist is saying and only do what the therapist says in certain situations. Next type of play therapy is imagery and fantasy play therapy. It is divided into 3 parts: worry dolls, guided imagery, and the word technique. First is worry dolls. Some children carry burdens from home, such as financial turmoil, leaving their feelings worried, which significantly affect their mental health. However, a play therapy activity like worry dolls go a long way in solving such problems. Now the question arises, how? So you present the children with dolls or help the client make their own, and then assign each with a thought bothering them, in this case, worry. After the session, they leave the dolls behind. In future sessions, the therapist can bring these dolls out one by one to discuss their worries and how the client is dealing with them. This activity can also use stuffed animals. The intent is to show children they don't have to worry and leave worries behind. इसमें टास्क सिंपल सा क्या करना होता है, बच्चों से कहा जाता है कि वो अपनी डॉल बनाएं, या उनको हम कोई स्टफ टॉय भी दे सकते हैं, और उनको कोई ना कोई थॉट असाइन कर दिया जाता है, जैसे इस केस में कि मतलब इनको चिंता करनी है, ये दे आर वेरी मच वरी. और जब वो सेशन ओवर हो जाता है तो वो उस डॉल को वहीं छोड़ के
घर चले जाते हैं। जब फ्यूचर सेशंस होते हैं तो थेरेपिस्ट उनको एक एक करके सामने लाता है और उनसे, क्लाइंट से पूछता है उनकी वरीज के बारे में। तो अब यहाँ पे उस समय तक क्लाइंट भी भूल चुका होता है कि इनकी वरीज क्या है, हालांकि वो वरीज उसी की इनकलकेटेड हुई होती हैं। तो इस छोटी सी एक्टिविटी का इंटेंट ये होता है, जस्ट मूव, डोंट carry the load of your worries with you. If you are very much worried, just leave the load of worry in that particular situation itself. Although it is difficult, but these are the some techniques which can help the individual to develop these skills in their personalities. Second is guided imagery. For example, a therapist might ask the client about a nightmare they have been having, then explain to the client that nightmares are like movies, and tell the client that they can change the nightmare if they do not like it. The therapist then work with the client to figure out a happier ending for a nightmare in an attempt to refrain the client's brain to feel more. तो गाइडेड इमेजरीज क्या होती हैं? जैसा कि इसके टर्म से ही स्पेसिफाइड है कि इसमें आपकी इमेजिनेशंस को गाइड किया जाता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। वो चाहे थेरेपिस्ट गाइड करे, चाहे आपका सेल्फ डायरेक्शन। अगर आपका कोई नाइटमेयर है जो आपको बहुत डराता है, वो आपको याद है, अब आप उस नाइटमेयर में कुछ पॉजिटिव थिंग्स डालो। वो पॉजिटिव थिंग्स आपके वो सब नाइटमेयर से जब एसोसिएट हो जाती हैं तो वो नाइटमेयर की इंटेंसिटी, जो उसके स्कैरी इंटेंसिटी है, वो घट जाती है। तो इससे जो क्लाइंट है उसका अपने ब्रेन पे कंट्रोल ज्यादा बढ़ता है। क्यों ज्यादा बढ़ता है? क्योंकि वो अपने नाइटमेयर को अपने गाइडेड इमेजरी से कंट्रोल कर रहा है। नाइटमेयर उसके लिए बहुत डरावना है, लेकिन उसमें क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो कुछ प्लेजेंट चीजें जोड़ रहा है, इमेजिन कर रहा है, जस्ट टू डिक्रीज द स्कैरी इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नाइटमेयर। सो दिस गाइडेड इमेजरी is a type of self direction towards achieving the better brain control over your system. Next is the word technique. This play therapy technique involves the child using toys and tools to build an imaginary world of their own. As you observe, ask questions to understand the child's mind. What they come up with could be happening in their reality. Additionally, this play therapy activity allows the child to express their creativity and express their emotions with no inhibitions. Playing the role of a creator gives them power. You find their problem solving skills improve because they face challenges and need to overcome them as they build. उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी एक अलग दुनिया बनाइए, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाइए, और जो ऑब्जर्वर होता है उनके इमेजिनरी वर्ड पे क्वेश्चंस पूछता है कि आपकी ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपने ये क्यों बनाया। तो ये सब जितने उसके क्वेश्चन आंसर हैं, या ये चीज, इसकी लोकेशन यहाँ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये वर्ड उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद बनाता है। अब चूंकि वो उसकी खुद की अपनी बनाई दुनिया है, दैट पर्सन फील्स मोर एम्पावर्ड and more motivated to solve the problems of that personal world. So the word technique, enhances the feeling of control, the feeling of empowerment, it boosts the self-confidence of the individual, and it also increases the ability of communication and problem solving in the personality of the individual. इसके बाद कुछ अदर प्ले थेरेपीज हैं, जिसमें लाफ्टर प्ले थेरेपी, स्ट्रेस इनोकुलेशन एंड मैजिक ट्रिक्स। Laughter play therapy. Laughter is said to be the best medicine for the soul. A tickling game is one to get children laughing. The therapist and client might take turns trying to make each other laugh in any way they can without touching each other. The client's parents can also play a tickling game with the client for the sole purpose of making the client laugh. The reaction to what is said, how it is said, and who says it gives you an idea of the family dynamics. This is very important. इसमें
बच्चों से बोला जाता है और फैमिली मेंबर से बोला जाता है कि आपको एक दूसरे को हंसाना है, लेकिन बिना एक दूसरे को टच किए हुए। अब उसमें वो फेसेस बना के लाफ कर रहे हैं या स्टोरीज बना रहे हैं या जोक सुना रहे हैं, वट एवर देयर पैटर्न इज, लेकिन वो जैसे भी एक दूसरे को हंसाते हैं उनके तरीकों से फैमिली डायनेमिक क्लियर हो जाता है। और ये जो फैमिली डायनेमिक है ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड हमें जाननी होती है ना, अगर हम काउंसलिंग करना चाहते हैं उसकी। तो फैमिली बैकग्राउंड हम उसके मदर से पूछेंगे, फादर से पूछेंगे, नाना नानी जो भी रह रहा हो ज्वाइंट फैमिली में, अड़ोसी पड़ोसी से, भाई कैसे फैमिली, वो दूर से बता देंगे। अब लड़ाई झगड़ा होता होगा सब बता देंगे, अंदर की बात कोई नहीं जानता है। अब अगर कोई ऐसी इंटरनल बात होगी तो पेरेंट्स भी नहीं बताते हैं। लेकिन जो ये लाफ्टर प्ले थेरेपी है ना, इससे फैमिली डायनेमिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज गो रन इन योर फैमिली। तो once this family dynamics get clear in front of the counselor, it helps in gathering the case study about the client for the counselor, which is very much important and very much needed for the right diagnosis of the client. Besides, real emotions are expressed in a happy and calm environment. Laughter improves relationship as well. It breaks barriers put up by life issues. तो लाफ्टर थेरेपी ऐसे भी इट इज द बेस्ट थेरेपी। और अगर जब आप हंस लेते हैं तो एक साथ में फेस की सैकड़ों मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो लाफ्टर अपने आप में ही बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन जब लाफ्टर प्ले थेरेपी के थ्रू आप फैमिली डायनेमिक्स को जान रहे हैं तो दैट इज अ एडिशनल फॉर इन योर लाइफ। सेकेंड इज स्ट्रेस इनोकुलेशन प्ले. The therapist might have the client play out a future stress-causing situation, such as an upcoming class presentation. The client can use toy to work out what might happen during the presentation, and the client might realize that the situation is not as scary as it first seemed. इसमें स्ट्रेस इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण। कोई बीमारी हमें आने वाली होती है, टीका हम पहले लगवा लेते हैं तो उस बीमारी से हमारा बचाव हो जाता है। स्ट्रेस इनोकुलेशन क्या होता है? स्ट्रेस आने वाला होता है, उससे पहले हम उसको इनएक्ट कर लेते हैं तो स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन आपको देना है, आपने 4 लोग बिठा लिए अपने सामने और एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके आपने प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसमें आपको पता चल गया कि आपको प्रेजेंटेशन के समय क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक आर्टिफिशियल सिचुएशन आपने बना ली। उसके बाद then you realize that this situation was not so scary, और आपके जो डर थे, जो एंजाइटी थे, that was all for me. So the therapist can also offer coping strategies for the client based on the client's fear about the presentations. अगर प्रेजेंटेशन है उसमें वो उस आर्टिफिशियल सिचुएशन में भी नहीं प्रेजेंटेशन कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ उसको ऑप्शनल टेक्निक्स जो काउंसलर है वो सजेस्ट कर सकता है कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, आप ऐसे प्रेजेंट करिए, यू आर द मास्टर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, तो नो वन एल्स नोज दिस मच एज यू। सो उसमें एम्पावरिंग वाली फीलिंग डालना कि ये प्रेजेंटेशन आपका है तो आपसे बेहतर कोई नहीं इसको प्रेजेंट कर सकता है। तो ये स्ट्रेस इनोकुलेशन होता है कि स्ट्रेस की जो रियल सिचुएशन आने से पहले ही अगर हम उसका कुछ मैनेजमेंट कर ले तो स्ट्रेस उतना पावरफुल नहीं हो पाता। थर्ड है मैजिक ट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, द थेरेपिस्ट माइट आस्क द क्लाइंट इफ दे वांट टू सी सम मैजिक, show them a magic trick and then show the client how to do the magic trick themselves. This is a fun activity that can help the bond between the therapist and client. Showing the client how to do the trick themselves can also give a client a feeling of control and mastery, which can raise their level of self-esteem. इसमें क्या होता है, जो ट्रिक्स काउंसलर को आती है वो काउंसलर जो है अपने क्लाइंट को भी सिखा देता है। और उसके बीच में ये फन एक्टिविटी है क्योंकि इसमें मैजिक ट्रिक सीखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैजिक इज नथिंग बट द ट्रिक ऑफ आइज। तो वो जब इन मैजिक ट्रिक को सिखाता है तो उनमें कम्युनिकेशन बढ़ता है, उनके बीच में रैपो अच्छा होता है और इस मैजिक से इंडिविजुअल में कंट्रोल एंड मास्टरी की फीलिंग आती है जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती। Now, evaluation of play therapy. Playing is considered the language of children.
With this in mind, games and play help children express themselves naturally with no inhibitions, regardless of what your child or family is undergoing. A therapy offers more solutions to handle. A struggling kid or one undergoing emotional abuse can easily get lost in a game and give clues to what is happening in their mind and social places. Play therapy continues to be practical and many parents give positive feedback after attending sessions with their children. प्ले थेरेपी बच्चों के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि प्ले के थ्रू ही उनकी पर्सनालिटी रिवील होती है. कोई बच्चा गेम के दौरान किसको कितना मार रहा है, किस टॉय को कितना डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इससे उसकी पर्सनालिटी शो होती है. तो जैसे हमारे साइकोमेट्रिक और प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ना, वैसे ही इन काउंसलिंग टेक्निक्स में जो प्ले थेरेपी इज लाइक अ प्रोजेक्टिव टेक्निक. इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं होता, डायरेक्टली हम कुछ बच्चे से नहीं पूछ रहे हैं, बट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस हो रहे हैं विच आर मोर रिलायबल. इससे हमें बच्चे के बारे में ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा रिलायबल डेटा हम कलेक्ट कर पा रहे हैं. जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमें हेल्प करती है ना, इन द सेम वे प्ले थेरेपीज आर इक्वली हेल्पफुल एज द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. तो इसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना फीडबैक देते हैं दैट दिस प्ले थेरेपी रियली चेंज देयर personality of the children in a better way or in a positive manner. So these are the references which were concerned for the making of this presentation and pictures. Thank you for now.